Hello, guys. Welcome to the first episode of Craft My Capital. Let's talk trading, some myths, some facts that we're going to talk about in and around trading. Because abhi ke liye, the way I look at it, trading is a very hotshot topic. जो सब कर रहे हैं. There's a lot of streamers, a lot of traders, a lot of brokers that are coming up, a lot of people who want to take a shot at trading, and a lot of things revolving around trading are going out around. I have also been in the markets for some time now, so I will also share my experience going on in the further episodes, and we'll also talk about more about trading. But initially, let's start with the myths and the facts. जो अभी कुछ नए traders जो आ रहे हैं या कुछ traders जो थोड़े time से है या फिर कुछ traders जो सोच रहे हैं कि is this really for me, or what exactly is happening with me. There's a winning streak, there's a losing streak. Some people are making money, some people are not making money. कोई इंडियन कर रहा है, कोई फोरेक्स कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है. Somebody is trading something, somebody is not trading something, somebody is trading crypto, somebody is trading the Indian markets, and a lot of things are there, and a lot of markets are there. So we'll be simplifying things going forward. But abhi ke liye, let's talk some facts. Let's talk some myths that are there around trading. Right. So let's go and get onto the screens. मैंने कुछ facts निकाल रखी है या कुछ चीजें ऐसी निकाल रखी है जो मुझे लगती है about trading. Some people beg to differ, some people might not agree with what I'm saying, but there are a lot of things that can go around. I will also be sharing what tools I use, what brokers I use, what things I use. I will also link them down in my description, and there will also be some telegram group जिसमें हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, हमारे ट्रेड शेयर करेंगे. I would not recommend taking trades from me or anybody else for that sort. Do your own research and then get into trading, because this is a place where your actual money is involved. So yes, let's get on to it. Right. So I come down in the corner. Let's start. So I have my screen here, so I'll be looking there. Right. Number one fact: trading is a zero-sum game. Some people might agree, some people might not agree. Trading is a zero-sum game, as in जैसे आप किसी मार्केट में जाते हो, लेट्स टेक अ वेजिटेबल मार्केट है या फिर फ्रूट मार्केट है. सो हर बायर के लिए, जैसे अगर मैं कोई बायर हूँ, लेट्स सपोज मैं एक ऑप्शन बायर हूँ. ऑप्शंस जो अभी के डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, जो यूज किया जा रहा है या फिर जो लोग ट्रेड करते हैं. सो उसके लिए देयर इज ऑलवेज अ सेलर अगेंस्ट अ बायर. राइट. लेट्स सपोज आई गो ऑन and I buy, let's say, आज निफ्टी का रेट है, let me just pull up some chart. Okay, so let's say this is my chart and I feel जैसे अभी मैंने ये एक पोजीशन आज के लिए लेके रखी हुई है. कल मुझे ऐसा लगता है कि markets might go down, so I've just taken one lot. This is for an example that I've taken. So I go out and I buy one contract. So I go there, I hop in there and I open my chart. I go to Nifty, I plot my some things there. Let me just get this out of the way. So जैसे अभी मैंने ये लिया तो मैंने इसको यहाँ खरीदा है. Right, then I also have a stop loss, I also have a target up there, and then there's some logic or some things behind whatever you trade or whatever you do. This is for an example that I've taken for today. So yes, so the first thing is, जैसे अभी मैंने ये contract खरीदा तो there is a buyer, there is a seller. So obviously in any kind of market जितनी demand है उतनी ही supply रहेगी. So let's suppose अगर मैंने कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, जैसे इस मूवमेंट पे मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, तो देन आई बॉट इट फ्रॉम अ सेलर. सो दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर देयर, दैट आर क्रिएटेड बाय NSE, PSE और whatever instrument that you're trading in. Let's suppose forex हो गया, किसी भी इसमें हो गया, तो मेरे अगेंस्ट एक सेलर रहेगा. So that's how trading becomes a zero sum game. Let's suppose I lose some amount of money or I make some amount of money. So somebody else on the other side is there to sell me a contract and he'll also make an money. So basically अगर यहाँ पे से किसी ने इस पॉइंट पे से जैसे किसी ने शॉर्ट किया है या फिर यहाँ पे जहां पे मैंने खरीदा है, तो यहाँ पे एक सेलर होगा जो मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है. So I become a buyer and he becomes a seller. And in any other case, that there's a vice versa for that. So this is how trading is a zero sum game, is what I feel and what my understanding is. Somebody might have a different objective towards it, but then that depends person to person and whoever you're following, or for that sort जो भी आप जिसे भी आप follow कर रहे हैं. नेक्स्ट थिंग, ट्रेडिंग इज अ गेट रिच क्विक स्कीम. बहुत लोगों को ऐसा लगता है, लुकिंग एट द इन्फ्लुएंसर्स, लुकिंग एट द पीपल ऑन व्हाट डू यू से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर इंस्ट्रूमेंट या जो भी प्लेटफॉर्म्स आप यूज करो, तो हर जगह पे ट्रेडिंग के बारे में बहुत अवेयरनेस है, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे लोग बात करते हैं. I've this is how my trading has shaped my life or shaped my things and everything. But
trading is not a get rich quick scheme. The number one fact that you have to keep in mind while you come into trading is यहाँ पे बहुत time लगता है. You have to understand the fundamentals, you have to understand the technicals, how the markets work, how कोई चीज कहाँ से क्यों move कर रही है, क्या level है, क्या नहीं है. Let me just give you an example for that as well. So let's say you've decided to trade. Let's say I recommend trading Indian markets because वो regulated है इंडिया में and उसके अगेंस्ट सारे compliances and everything है. I'm not saying कि आप कोई और चीज नहीं कर सकते. Everybody has their own preference, but then for this thing I have chosen कि मैं इंडियन मार्केट से ही थोड़ा स्टिक करके चलना चाहूँ. So let's suppose you've decided to trade. अभी आप आ गए, आपने अकाउंट खोल लिया. By the way, the link is in the description. But in case if you want to use the broker that I use, बाकी आपके खुद के preferences हैं. So let's suppose you've decided to trade, you've opened an account, you're looking at Nifty. अभी आप सोचोगे मैंने यहाँ पे buy दबा दिया, यहाँ जाके sell कर दिया. But then before you do that and before you start making crazy amounts of money जो लोग बना रहे हैं, you have to understand कि आपका risk appetite क्या है, आप कितना पैसा लगा रहे हो, उसके अगेंस्ट आप कितना निकालना चाहते हो, या फिर आप जो भी आप कर रहे हो वो कितना डिटेल्ड या फिर कितना आपका रिस्क एपेटाइट है, या फिर आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हो, या आप कितना मार्केट्स के बारे में जानते हो. इट्स नॉट ओनली मी बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव पुट अ लॉट ऑफ टाइम. जैसे आपने लेट्स सपोज डिसाइड करते हो कि आप मैंने आज 1 लाख रुपए, लेट्स सपोज ऑन एन एवरेज आप 10,000 से शुरू कर रहे हो, 10,000 आपने डाल दिए और आप कल की कल उसको 1 लाख या 2 लाख में कन्वर्ट करोगे, ऐसा नहीं होगा. It is going to take time. It is going to take you up. It is going to bring you crashing down. Then it's going to take up, and then it's going to. It all depends on आपका risk management कितना अच्छा है, आप कैसे आपके पैसे को manage करते हो. So trading is not only about clicking buttons or going into fundamentals and technicals. It takes a lot more कि क्या हो रहा है मार्केट में, आपने क्या पोजीशन ली है, आपने कितना उसके बारे में रिसर्च किया है. अच्छा चलो आप अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो तो उसके पीछे आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, आप आपके कैपिटल को बाहर निकाल रहे हो या नहीं, आप उस पैसे को बाहर निकालने के बाद सेव अप कर रहे हो, कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, या क्या कर रहे हो. ऑल्सो बिफोर यू कम टू ट्रेडिंग आई वुड लाइक फॉर यू टू थिंक कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हो. बेसिकली आप रोज ट्रेड करना चाहते हो, या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो. सो उसके लिए भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है. लेट्स सपोज इफ यू आर ट्रेडिंग डेली, सो यू कैन गो इनटू ऑप्शंस, यू कैन बाय फ्यूचर्स, यू कैन बाय स्टॉक्स, यू कैन बाय लॉट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. कोई क्रूड में करता है, कोई फोरेक्स करता है, कोई डे ट्रेडिंग करता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए डाल के रख देता है. सो ये सारी चीजें हैं. तो उसके पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हैं. Also, this is a time consuming process. Any influencer you take on Instagram, Snapchat, WhatsApp, आपका टेलीग्राम, यूट्यूब, जो भी आप देखते हो, जो भी लोग आपको रिटर्न्स की गारंटी दे रहे हैं, या फिर जो लोग बहुत सारा प्रॉफिट बना रहे हैं, एक दिन में मैंने 2 लाख बना ली, 5, उसके अगेंस्ट they put a lot of time and effort. It has taken a lot of journey for somebody to reach there. At least I would say 3 to 4 years or 2 years at minimum to start making actual money after your capital is taken out or your money has been taken out, जो आपने डिप्लॉय किया था, और उसके बाद जो आप प्रॉफिट्स बना रहे हो उसके ऊपर होने के बाद, प्रॉपरली उस पैसे को मैनेज करने के बाद आप उसको उसमें से एक्चुअल पैसा बना रहे हो. आई वुड ऑल्सो रेकमेंड इफ यू आर इन द जॉब, इफ यू आर स्टडिंग, इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स, इफ यू हैव अ रनिंग बिजनेस, keep it there. Trading is something that I don't think that somebody should whole and soul rely on. You should have something as a backup, something there to fuel it, to actually कि आप कुछ चीज कर रहे हो, उसके बाद आप उस इस लाइन ऑफ प्रोफेशन में आओ तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. ये मेरा मानना है, बाकी somebody else might differ. Again, these are all my personal opinions, somebody else might beg to differ. Next point, let's go. Trading is only about profits. Okay, this is a very important topic. A lot of people jump into trading thinking कि oh my god, आज जैसे मैंने पिछले पॉइंट में भी बोला कि मैंने आज अकाउंट खोल लिया, मैंने 10,000 डाल दिया और मैंने 10 के 20 कर दिया, अरे रे रे मैं बहुत पैसा बनाऊंगा. नो, देयर आर गोइंग टू बी लूजिंग स्ट्रीक्स, देयर आर गोइंग टू बी विनिंग स्ट्रीक्स. देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम्स कि आप बहुत सारी चीजें, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स आपके सब स्ट्रांग है, आपके अंदर स्किल है, सब माइंडसेट है, सब कुछ है, एंड येट योर ट्रेड्स माइट नॉट गो in your way. I think the way I look at it, trading, when you place a trade, it's a 50-50 probability कि वो आपकी रेंज में जाए. Let's say मैं आपको उसके लिए भी एक एग्जांपल बताता हूँ. जैसे मैंने आपको बोला कि ये मैंने अभी जो ट्रेड ले रखी है मेरी, ये वाली, ये जरूरी नहीं है कि ये कल मेरे डायरेक्शन में जाए.
there's a lot of chances. Let's suppose अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि वेरी नॉर्मल एग्जांपल है ये, कि मुझे ऐसा लगता है कि कल यहाँ से जो है ये जो लेवल इतनी बार टेस्ट हो चुका है, शायद ये टूटे और शायद 24,000 का सपोर्ट टूट के मार्केट नीचे जाए, तो फिर ये ट्रेड मेरा चले. So whenever I take a trade or anybody else for that sort takes a trade, it is, I say, or this is again my personal opinion, it's a 50-50 probability कि वो ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाए. शायद ना भी जाए, जा भी सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने जो डिसाइड किया वो टारगेट हिट ही हो. मे बी आप उसको ट्रेल करने लग जाओगे और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, या फिर आप उस वो आपके स्टॉप एसएल लेके आपके टारगेट की तरफ जा सकते हैं, जैसे एसएल हंटिंग बोलते हैं लोग, या फिर बहुत सारे टर्म्स है उसके लिए. इट इज नॉट नेसेसरी that trading is only about profits. It is also about the losses that you make. There is a lot of times you're going to lose money. There's a fact, let's say 95% amount of people, let me just bring that up, how many people make money in trading. Only 1 to 10% of retail traders remain consistently profitable over long term. It's a fact. It's on Google. I am not making this up. I am not demotivating you. I am not saying कि आप पैसा नहीं बना सकते हो. It's a very good thing. If you're very smart, you will make money. I hope everybody who's connecting and who's being a part of our community makes money. But our goal is not to take you towards complete trading. It is also about managing your money. That's the name Craft My Capital. Right. So now it is very clear that trading सिर्फ profits के लिए भी नहीं, you are going to lose money, you're bound to lose money. So in case if you decide on becoming a daily day trader or a options trader or any kind of trader, unless and until you're not investing it in for a long time, investments are subject to market risk. Long term में भी पूरा पैसा बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. But for a fact, keep in mind you deploy the amount of money that you're comfortable losing with at a point of time. अगर आप डे ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हो या ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हो या फॉरेक्स की तरफ जा रहे हो या एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट यू ट्राइंग टू ट्रेड, क्रिप्टो हो गया, आपका फॉरेक्स हो गया, या आपका इंडियन मार्केट्स हो गया, जो अभी के इसमें सबसे ज्यादा बूम में है, इसलिए मैं तीन ही मार्केट्स के बारे में बात करूंगा. आई विल नॉट टॉक अबाउट समथिंग एल्स. But then recently धन ने अभी शुरू किया है that you can also trade in the American markets. I guess somewhere here you'll find that option. I'm not sure because I don't do that. So never mind. Moving ahead. Next thing. Let me just bring that up. Okay. Success in only trading comes from relying on somebody else. It's a big, 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 big myth. जितने भी लोग आपको ट्रेड दे रहे हैं या जितने भी लोगों से आप ट्रेड ले रहे हो, आप मेरा भी टेलीग्राम खोलोगे, जब मैंने शुरुआत में शुरू किया था, आई यूज्ड टू गो bonkers looking at the types of calls and options and things and everything, the type of trades people give. बहुत ट्रेड्स आते हैं. फॉर अ फैक्ट आई टेल यू, आप किसी भी ब्रोकर के पास जाओगे, एडवाइजर के पास जाओगे, किसी यूट्यूबर के पास जाओगे, अब मेरे पास भी आओगे, अगर मैं भी आपने ट्रेड शेयर करने लग जाऊं, इट इज नॉट अ गारंटी कि आपका उसमें पैसा बनेगा. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका वो ट्रेड चलना ही चलना है, या फिर उस इंसान ने बोला है इसलिए मार्केट उस डायरेक्शन में जाना जरूरी है. अभी अभी की रिसेंटली मैं न्यूज बताता हूँ आपको, बहुत सारे शेयर, गिवन ट्रम्प्स होल ड्रामा एंड एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन, देयर इज अ ह्यूज वे जहां पे बहुत अच्छे चलने वाले शेयर्स भी नीचे गिर गए. राइट. बिकॉज फंडामेंटली न्यूज आ गई, एफआईएस का सेलिंग आ गया, डीआईएस ने कितना कितना ही खरीद लेंगे, डीआईएस या कोई भी, जो फॉल आना है वो आना ही है, मार्केट क्रैश करना है तो करना ही है. देयर इज नो रीजन दैट इफ समबडी हैज टोल्ड यू कि ये ट्रेड चलेगी चलेगी, तो वो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना देगा जस्ट बिकॉज मैं आपको दिखा रहा हूँ. जैसे लेट्स सपोज ये अभी मैंने आपको जैसे बोला कि मैंने एक लॉट ले रखा है, ये आज के वीडियो के एग्जांपल के हिसाब से मैंने लिया था. इसकी जगह पे यूजुअली आई डिप्लॉय अ लिटिल मोर क्वांटिटी, अ लॉट ऑफ पीपल डिप्लॉय डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज. अभी जैसे इसको मैं आपको रिवर्स करके बताऊंगा, जैसे मैंने बोला कि यार जैसे इस पॉइंट पे मैंने आपको आके बोला कि यहाँ से बाइंग मतलब ये मार्केट गिरेगा, राइट. इफ यू हैव अ लिटिल बेसिक नॉलेज अबाउट ट्रेडिंग, सो लेट्स सपोज आई स्टार्ट डिप्लॉइंग, मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, अगेन दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, आई डिप्लॉय लेट्स से नॉट 100 लॉट्स, 100 जरा ज्यादा हो जाएगा, नहीं, लेट्स से वी डिप्लॉय 10 लॉट्स हियर. सो आई क्लिक बाय एंड देन यहाँ से मैंने आपको ट्रेड दिया कि यहाँ से ये ऊपर जाना है, ये ऑप्शन अभी वो पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है, some weird reason. Please be fresh.
ओके नेवर माइंड, लेट्स नॉट गो, लेट्स सी वो बाद में क्या हो रहा है, उसमें कुछ इशू है। राइट, सो बैक टू आवर टॉपिक। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किसी पे रिलाई करो। अगेन मेरे डिस्क्लेमर में भी लिखा है, मैं भी अगर आपको कल को चल के कोई ट्रेड डू, डू योर ओन रिसर्च, थिंक, लर्न, गेट द लॉजिक बिहाइंड अ ट्रेड कि ये ट्रेड ऐसा क्यों है, या फिर ये इस पोजीशन या इस डायरेक्शन में ये ट्रेड क्यों चलना चाहिए, कोई भी प्राइस जिस डायरेक्शन में आपको लगता है मूव कर रहा है वो क्यों मूव करना चाहिए। देयर शुड बी सम फंडामेंटल, सम टेक्निकल रीजन अबाउट इट, कि जैसे यहाँ पे अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो वहां से वो बाउंस करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वहां से नीचे गिरेगा, तो आप वहां से उसको शॉर्ट कर रहे हो या कहीं से आप उसको लॉन्ग कर रहे हो, या वट एवर यू आर डूइंग, make sure that you do your own research and you do your own research. Success in trading will never come when you are relied on somebody else. Somebody might say कि आप मेरे calls ले लो सर प्रॉफिटेबल ही रहोगे, नहीं होगा। आप पेड भी कॉल्स लेने जाओगे, बहुत सारे चीजें हैं। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन द मार्केट जिनको आप पैसे दे के वो आपको कॉल्स देंगे। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स है जो फ्री में कॉल्स देते हैं, यूट्यूबर्स है जो ट्रेड दिखाते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो ट्रेड्स चलेंगी। देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन आल्सो हिट स्टॉप लॉस, दे कैन आल्सो इनकर अ लॉस, एनीबॉडी दैट इज गिविंग यू अ ट्रेड कैन इनकर इनटू लॉस। प्रॉफिट हो रहा है बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, आप कीजिए, बट आई वुड रेकमेंड यू डूइंग योर ओन रिसर्च। Profit and losses should not be emotional. Yes, number one thing. A lot of people, I will tell you, even me, मैं जब करता हूँ ट्रेडिंग या फिर मैं बहुत बार ऐसा होता है that I get into a trade and let's suppose BTST किया है मैंने, stock options में usually take some time to move into your direction and the stock to go up and then your option would start moving with delta and all of those things. A lot of times people get very emotional कि अरे यार ये चल ही नहीं रहा है, मैं 2-3 दिन से पकड़ा हुआ है यार, ये चल क्यों नहीं रहा है, क्या हो रहा है, oh I'm getting frustrated. It is part of a game. Trading will test your patience, it will test your time, it will test everything that you have to give. It will make you beg for getting where you will get after a point of time. It is a time consuming process. Again, ट्रेडिंग इज नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। ये चीज इसके अंदर घुसने के पहले के दिमाग में बहुत क्लियर कर लीजिए कि इट विल टेक टाइम। आप जो इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं उन्हें भी टाइम लगा था, मुझे भी टाइम लगा है, एनीबडी एल्स फॉर दैट सॉर्ट हु इज कमिंग इन हैज टेकन टाइम एंड विल टेक टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, not a lot of time, but depends on your pace and how smart you are with your money and everything. सो यू हैव टू नॉट बी इमोशनल कि मेरी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, अरे मेरी प्रॉफिटेबल स्ट्रीक चल रही है, अब तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। डोंट डोंट डू दैट, बी वेरी रैशनल। दोज नंबर्स ऑन द स्क्रीन शुड ओनली बी नंबर्स, ऑलवेज चेंज योर प्रॉफिट्स इनटू परसेंटेज, वो भी एक ऑप्शन है, सॉरी पॉइंट है आगे जो जिसके ऊपर जो हम आगे बात करेंगे। यू डू नॉट नीड टू डॉक्यूमेंट योर ट्रेड्स। Journaling, everybody on YouTube, any trader, any person that is trading will tell you to journal your trades कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, कहाँ से मैंने बाय किया, कहाँ मैंने उसको सेल किया, क्या उसके पीछे का लॉजिक था, और मेरी वहां पे अगर वो सही चला है तो क्या सही गया, गलत गया है तो क्या गलत गया। आई विल ऑल्सो शो यू दैट a lot of times, uh, there are different ways where people can journal. Let me just change my layout, let me just open my layout. ठीक है, तो this is again very subjective, but आपकी की अपनी अपनी चॉइस है। जैसे अभी मैं पीछे लूंगा, थोड़े टाइम से मैं इंडेक्स में थोड़ी कम ही ट्रेड ले रहा हूँ। So this was a day where I was very bearish on the markets, and then I made a first stop loss hit हुआ, यहाँ पे target hit हुआ, यहाँ पे stop loss hit हुआ, यहाँ पे भी stop loss hit हुआ, यहाँ पे फिर से target hit हुआ। तो मैं quantities में खेल रहा था, so then somehow I managed to get my risk back, but this was a bad day एंड ओवरऑल ट्रेडिंग। तो उस दिन मैंने ये नोट किया कि आई डिड ओवर ट्रेडिंग जस्ट बिकॉज मेरा शुरुआत का ट्रेड गलत गया था, और फिर मैं थोड़ा सा रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ चला गया, विच इज ऑल्सो वेरी घातक। आपको आप जैसे मैंने बोला कि इमोशंस पे कंट्रोल रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बिकॉज यूर ऑन अ लूजिंग स्ट्रीक और विनिंग स्ट्रीक तो आपने ऐसा सोचना है कि अरे मैं बहुत स्मार्ट ट्रेडर हूँ या फिर मैंने पूरा मार्केट ही जीत लिया। जैसे अभी यहाँ पे पिछले दिन पे बहुत साइडवेज था तो फिर आई डिड नॉट टेक अ ट्रेड हियर, राइट। एंड ऑल्सो नॉट ट्रेडिंग इन ट्रेड इन द मार्केट इज ऑल्सो अ ट्रेड। आपको बहुत कंट्रोल रहना है कि आप क्या ट्रेड ले रहे हो। आप पूरा मूवमेंट कभी कैप्चर नहीं कर पाओगे, कीप दैट फैक्ट इन माइंड कि यार यार मैंने यहाँ बेच दिया, यहाँ बेचता तो क्या होता। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होके टारगेट हिट हो सकता है, आपका टारगेट भी हिट हो सकता है, और वहां से भी शायद ऑप्शन 10-50 पॉइंट चले। आप सेंसेक्स के ऑप्शन देखने जाओगे तो वो कभी कभी 20 रुपए के 200 रुपए हो जाते हैं,
आप कभी स्पाइक में अगर देखोगे तो यू नो इट विल गो अप सो अप एंड यू विल बुक इट समवेयर एंड देन वहां से वो 20-50 पॉइंट चल गया. मे दैट बी निफ्टी, मे दैट बी फॉरेक्स, gold, crypto, any instrument that you're trading, keep in mind you're not going to be able to capture the whole what do you say move or the whole scenario, right? उसकी बेसिस पे देन यू हैव टू मैनेज कि आप कहाँ एंट्री ले रहे हो, कहाँ एग्जिट कर रहे हो. जैसे यहाँ पे ये फॉल आया तो मैं ये भी सोच सकता था कि यार अगर मैं इस ट्रेड को ना यहाँ से लेता तो पता नहीं शायद मैं और कुछ 20-50 पॉइंट 30 पॉइंट में और थोड़े गेन कर लेता. जैसे यहाँ पे मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग था इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना ही जाना है, right? So first it hit me out, it put me out of the trade, but then my conviction was so strong. And the next, right when I got out of this trade, I have not documented it. मतलब मेरे पास तो स्क्रीन पे नहीं और ये एक्सपायरी भी हो चुकी है. These are old records. So इस पॉइंट पे फिर मैंने वहां पे से मैं निकला, बट देन अगेन वो वापस जब स्वीप पे आया तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, दिस हैज टू गो फॉर अ लॉन्ग. इट वेंट फॉर अ लॉन्ग, इट हिट माय टारगेट व्हिच इनिशियली वाज हियर, बट देन फिर वो थोड़ा सा लकीली मैंने उसको थोड़ा ऊपर ट्रेल करके रखा हुआ था. एंड आई वाज लाइक इफ इट हिट्स इट हिट्स, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस स्पीड में वो नीचे गया उससे उस स्पीड में वो ऊपर भी आया तो फिर वापस मेरा था कि वो ऊपर हिट करेगा करके, राइट? एंड दिस वाज आल्सो लेवल हियर. ये मैं कैमरिलिया लेवल्स थोड़े यूज करता हूँ, सो दिस कम्स अ लेवल हियर. यूजुअली इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जिस पॉइंट पे आपको लगता है वहीं से जाए. बहुत बार ऐसा होता है कि यू नो द मार्केट्स विल कम, इट विल कम. आपका टारगेट शायद ये रह सकता है और वो यहाँ ये इस यहाँ रह सकता है और वहां से वो रिवर्स कर जाए. या तो फिर वो आप चल रहे हो ऐसे, आपने लेट्स से आप कहीं यहाँ एंटर कर रहे हो, लेट्स सपोज यू एंटर हियर. कैमरे लेवल्स भी मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में सिखाऊंगा और जो मैं टैक्स यूज करता हूँ वो भी मैं आपको सिखाऊंगा. यहाँ आप जा रहे वो इट हिट्स योर स्टॉप लॉस एंड देन इट गोज अप. दिस यू नो यू डिसाइडेड कि ये इस पॉइंट पे आ गया, आपने आपका स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ ट्रेड कर लिया और वो नीचे आता है, हिट करता है, फिर आपका टारगेट हिट करे. इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी ट्रेड विल गो इन यू नो द वे यू आर थिंकिंग. और आपको इमोशनल लेस होके ट्रेड करना है. इट इज ओके टू लूज मनी, इट इज ओके to make good amount of money very quickly, but it is not okay. जो अभी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में, it is okay to blow my account. No, it is not. If you have deployed some amount of money, it's okay. मैंने जैसे आपको पहले बोला कि you should be okay with losing that money, but ये नहीं कि आप ये सोचो कि यार मैंने ये तो डाले कि चल जाएगा, उड़ भी जाएगा अकाउंट, तो नहीं. It should not work like that. It should be like कि वो चीज जो है वो आप उसको संभाल के चले कि ये पैसा मुझे पूरा खत्म नहीं करना, मुझे उसे सस्टेन करना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आई एम टेकिंग लिटिल मोर टाइम, सो लेट्स यू नो गेट इट अ लिटिल फास्टर. यू कैन ट्रेड विदाउट अ प्लान. नो, अगेन जर्नलिंग वाले पॉइंट में मैंने बोला कि आपको बहुत श्योर होना है कि आपका उस ट्रेड के पीछे लॉजिक है. बिना लॉजिक के सिर्फ वो ऊपर जा रहा है, मुझे लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा, मुझे लगता है यहाँ से नीचे जाएगा, से नहीं होगा. यू हैव टू लुक फंडामेंटली, टेक्निकली. यू हैव टू बी स्ट्रांग विथ योर माइंड कि मुझे ये ट्रेड इसलिए लगता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ से सपोर्ट है, या फिर इस ट्रेड इस स्टॉक की ये न्यूज आई है कि भाई किसी ने किसी को अक्वायर कर लिया, किसी का प्रॉफिट रिजल्ट, मतलब अभी जैसे रिजल्ट सीजन चल रहा है एज ऑफ वी टॉक, तो अभी सारे रिजल्ट्स आएंगे, इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा है इसलिए वो ऊपर जाएगा, या रिजल्ट खराब आया इसलिए वो नीचे जाएगा. देयर शुड बी सम लॉजिक और सम प्लान बिहाइंड एवरी ट्रेड दैट यू आर मेकिंग. ओनली फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स मैटर. नो, a trade a stock or a position with a very good technical support will also go opposite of your direction. Fundamentally कोई खराब न्यूज आई, जैसे ट्रम्प ने बोल दिया कि अरे हमने तो ईरान पे वॉर शुरू कर दिए, FIs will start selling or some or the other reason, you know, something might go out. जैसे फॉरेक्स में आपने देखा होगा कि CPI डेटा आता है न्यूज में, फटाक से बड़ी सी कैंडल आ जाती है, वॉर शुरू हो जाता है तो गोल्ड भागने लग जाता है, बिकॉज गोल्ड ओनली बिकम्स वन वेरी परफेक्ट एसेट जिसके जो ट्रेडेबल होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो एक स्ट्रॉन्ग करेंसी वर्ल्ड वाइड एक ही जो मानी जाती है उस टाइम पे वॉर के सिचुएशन, इसलिए गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है. दैट्स अ टॉपिक फॉर अ डिफरेंट डे. सो इसलिए आपके सिर्फ फंडामेंटल या फिर एक टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होके नहीं जमेगा. यू हैव बोथ गो हैंड इन हैंड एज पार्टनर्स, and then only you have to go forward with you know whatever you're planning as a you know in your trade. You're profitable because your account is showing profits. No, I feel कि जैसे समझिए मैंने डिसाइड किया है कि मैंने आज जैसे मैंने जब शुरू किया था, सो आई स्टार्टेड विथ 1 लाख रुपीज, राइट? आई डू ऑप्शन बाइंग, सो आई स्टार्टेड विथ 1 लाख रुपीज. आई विल नॉट बी प्रॉफिटेबल अगर मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए हो गए. नो,
दिस इज अगेन माय पर्सनल ओपिनियन, आई बिकम प्रॉफिटेबल जब ये 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में हो चुके हैं और इस पैसे को मैंने बाहर निकाल लिया है, एंड देन अगेन मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए का बैलेंस दिख रहा है। जब मेरा कैपिटल सेफ भी बाहर आ जाएगा, इसके लिए हम और एक एपिसोड करेंगे जहां पे आपको आपका कैपिटल कैसे मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। So when you take out the money that you have deployed, the money that you have invested, then you become profitable is again my personal opinion. तो उसके हिसाब से आपने प्लान करना है कि आपने जो पैसा डिप्लॉय किया है वो बाहर आ गया है क्या, आपका कैपिटल सेफ हो गया है क्या। द डे योर कैपिटल इज सेफ, द मनी दैट यू हैव डिप्लॉयड इज सेफ, दैट इज द पॉइंट वेयर यू स्टार्ट बिकमिंग प्रॉफिटेबल। 1 लाख के ऊपर मैंने 1 लाख बनाए, उसके बाद 1 लाख रुपए बाहर निकाले, वो जो 1 लाख बचा हुआ है दैट इज माई प्रॉफिट एंड देन आई बिकम प्रॉफिटेबल। अगर मैं उस 1 लाख को जो मैंने प्रॉफिट बनाया है उसको मैं ग्रो करते करते आगे लेके जाऊं, या द ग्रोथ इज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइक दिस, इट इज गोइंग टू बी हिस्की 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 हिस्की। Maybe you take a good dip and then again you go up. It is again profit and loss, ये markets का जो है structure है, या फिर क्या बोल सकते हैं, it is let's say it is bound to happen। आपने प्रॉफिट भी करना है, आपने लॉस भी करना है, आपने सब कुछ करना है। मैं किसी को अगेन डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज अ फैक्ट कि आप जब आपका कैपिटल बाहर निकालोगे जो आपने डिप्लॉय किया है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। बिकॉज अगर आप लेट्स सपोज, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 1 लाख रुपए डिप्लॉय किया है ना, लेट्स सपोज मैंने 1 लाख रुपए डिप्लॉय किया, अभी 1 लाख का मैंने 2 कर लिया, राइट, ये मेरे 2 लाख आ गए। लेट्स से फॉर सम रीजन, बिकॉज आई हैव बीन ऑन अ विनिंग स्ट्रीक, अगेन द पॉइंट वेयर ऐसे इमोशनल ट्रेडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया। जैसे मैं शुरुआत में मैं 1 या 2 लॉट से यूजुअली ट्रेड करता था, फिर मैंने 6 लॉट पे लेके गया, 7 लॉट पे लेके गया। अभी मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो विनिंग स्ट्रीक पे हूँ, अब मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ बिकॉज मैंने मेरा कैपिटल डबल कर लिया। लेट्स सपोज आई हिट इट विद 10 लॉट्स, राइट, देन माय क्वांटिटी बिकम्स जो 65 के मल्टीपल्स में होता है इफ यू आर ट्रेडिंग निफ्टी। और लेट्स सपोज इफ यू आर डूइंग फॉरेक्स, तो आप 0.1 0.01 से शुरू करोगे, फिर आप 0.1 पे जाओगे, फिर आप 1 लॉट पे जाओगे, यार हाउएवर यू ग्रो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 1 से वो हो, आप 0.2 हो जाओगे, 3 हो जाओगे, 4 हो जाओगे, जैसे भी आप ग्रो कर रहे हो। इट्स एवरीबॉडीज पर्सनल रिस्क एपेटाइट एंड अगेन मैनेजमेंट, एज आई सेड बिफोर। सो नाउ व्हाट आई वुड डू इज, लेट्स सपोज अब मेरा अकाउंट डबल हो गया है, मैंने यू नो मेरे अकाउंट से मैंने 1 लाख रुपए निकाल लिए, मैं अब मेरा कैपिटल अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ, मेरा कैपिटल बाहर आ गया है। Then I decide from going from let's suppose 65 quantity से मैं अब जा रहा हूँ बीच में, आप 500 535 या जो भी मल्टीपल्स होते हैं 565 के, आप 5-6 लॉट से ट्रेड करते हो। अब मैंने 10 लॉट डाल दिया और मैंने हेवीली पुश कर दिया बिकॉज मैं एक विनिंग स्ट्रीक पे हूँ और वो जा रहा है मेरी डायरेक्शन में। फट से कुछ तो न्यूज आती है, जैसे ट्रम्प की कोई वॉर की न्यूज आ गई और निफ्टी फटाक से नीचे आ गया एंड इट हिट्स माई स्टॉप लॉस। Then my account from 2 lakh will come, sorry, 1 lakh will come down। अब मैंने फुल लेवरेज फुल सब मेरा यूज करके मैंने 1 लाख रुपए डिप्लॉय कर दिया उस ट्रेड में, या फिर लेट्स सपोज 98 96 80,000 मैंने डिप्लॉय किया है और वो ट्रेड नीचे आ गई एंड आई लूज मनी। लेट्स सपोज एट दैट डे आई लूज समवेयर अराउंड 30,000 रुपीज। लेट्स सपोज नेक्स्ट डे भी मेरा ऐसा ही होता है, कुछ 4-5 दिन मेरा लूजिंग स्ट्रीक चलता है और मेरा अकाउंट ड्रॉ डाउन में आके आ जाता है, let's say 30,000 ही बचता है मेरे पास, it goes like a bad week and then मेरे पास 30,000 ही बचा है। then what are you going to do? और let's suppose you liquidate your account, जो forex में बहुत easy term है, या फिर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि अकाउंट ब्लो हो गया, अकाउंट, तब आप क्या करोगे? that is the point where your saved capital will come back and help you कि ये मैंने पैसा डाला था, ये मैंने बाहर निकाला, ये मेरा सेफ कैपिटल है, so that it will again refuel your ट्रेडिंग जर्नी। अगेन वेयर आई सेड कि अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, देयर दैट एक्टिविटी शुड बी देयर, ताकि आप लेट्स सपोज आप कैपिटल बाहर भी नहीं निकालते, आपके पास कुछ स्पेस रहे, कुछ ब्रीदिंग के लिए जगह रहे जहां पे आप उस पैसे को बाहर निकाल के उसको यूज करके आप उसको फिर से उसमें डाल के आप वापस ट्रेडिंग में आ सकते हैं। बिकॉज लेट्स सपोज अगर मैंने 2 लाख मेरे अकाउंट से नहीं निकाले और मैं उसी जैसे एक टर्म होती है रिवेंज ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने एक एग्जांपल भी दिखाया, तो मैं कर रहा हूँ मेरे 2 लाख रुपए अंदर लगे हुए, मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, 2 लाख मैंने उड़ा दिए, अब मैं क्या करूँ?
अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता बिकॉज माई मनी इज गॉन. I don't have a capital. Let's suppose I was doing a job, I left my job. अब मैं करूँ तो करूँ क्या, पैसे लूँ कहाँ से? That is where people get loans, people get into traps, people will borrow money from somebody. यार मेरे को देना, मैं तेरे को थोड़े दिन में देता हूँ. And then you drown. And that is where people, ये जो perception बन गया है लोगों का कि trading is gambling, trading में loss ही होता है, ये होता है, वो होता है. ट्रेडिंग में लॉस होता है, अग्रीड है, बेशुमार वो एक फैक्ट चीज है कि ट्रेडिंग में लॉस होता है. आपका बहुत ड्रॉडाउन में अकाउंट आ सकता है, आप बहुत पैसा भी बना सकते हो. आई एम नॉट, अगेन नॉट डीमोटिवेटिंग एनीबडी, बट this is where we don't want you to go. At Craft My Capital, we want you to manage your money properly और एक अच्छी एक जर्नी की तरफ जाओ, rather than आप just because कोई किसी ने बोल दिया ये करना है तो करना है, मत कीजिए. This is your hard earned money. आपने बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, इसको आप सेव करें और अच्छे से उसको इन्वेस्ट करें और मैनेज करें. We'll look that in more coming what do you say in the coming episodes. Start trading with again all your savings. Oh, I think we missed a fact. हाँ नहीं, right. Start trading with all your savings. No, again, अभी मैंने उस पॉइंट को इसी पिछले वाले पॉइंट में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया कि आपके पास थोड़ा वेरिएबल स्पेस होना चाहिए. Only deploy the amount of money you're okay with losing और रिस्किंग, कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, या फिर मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मेरे पास थोड़ी सेविंग्स आ गई है, मेरे पापा मुझे महीने के 30 40 50 जो भी आपको पैसे भेज रहे, मैंने 2 3 महीना सेव किया, मेरे पास अभी अच्छा एक 40 50 हजार का अमाउंट आ गया है, तो अब मैं ट्रेडिंग शुरू करता हूँ एज अ साइड हसल या एज अ वट एवर हाउ एवर यू पुट इट. एंड देन यू स्टार्ट ट्रेडिंग. आप आपके पूरे पैसे ना घुसेड़े इसमें अनलेस एंड अनटिल आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रख रहे हैं. जैसे रिलायंस में कीजिए, टाटा में कीजिए, किसी भी ब्लू चिप शेयर में आप कर दीजिए, परसिस्टेंट सिस्टम में कर दीजिए, एनी ब्लू चिप शेयर दैट विल गिव यू गुड रिटर्न्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज दीज शेयर्स आर फंडामेंटली टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर्स विद अ ह्यूज मार्केट कैप, जिसमें आप का पैसा गायब नहीं होगा या आप बहुत ज्यादा नुकसान नहीं खाएंगे, बिकॉज दीज आर वेरी स्टेबल स्टॉक्स. ऑलवेज डू योर रिसर्च अगेन, talk to your wealth advisor or any other person that you talk to before investing, but do not start trading with all of your savings. Third thing, trading is a short term game. No, again, with the first point that I said, or the opening point, trading is a zero sum game or trading is a get rich quick scheme. आपके लिए ट्रेडिंग तभी वर्क करेगा अगर आप उसको टाइम देंगे, पेशेंटली उसको मैनेज करेंगे, अच्छे से आपके पैसे को बाहर निकालेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे, ट्रेड्स को मैनेज करेंगे, जर्नल करेंगे, सब चीजों का अच्छे से जब आप मैनेज करोगे तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बनोगे. अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म गेम की तरह खत्म हो जाए, you do anything, you become reckless. Trading is not a short term game, it is a very time consuming process. It will take a lot of time. Every influencer that you see sitting on Instagram, YouTube, even me for that sort, it takes a lot of time behind, building whatever is in. दिखाने को मैं भी दिखा दूंगा, मेरे पास भी iPad है, मेरे पास भी वॉच है, मैं भी बुक पहन रहा हूँ, मेरे पास भी मैकबुक पड़ा है. It has taken time to reach where everybody has reached. A lot of people जो आपको महंगी महंगी गाड़ियां दिखा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है या फिर उन लोगों ने नहीं किया, बट उसके पीछे उन्होंने बहुत टाइम, एफर्ट, मेहनत ली है वहां तक पहुंचने के लिए, मैनेजमेंट किया है, उसके बाद उन लोगों ने वो चीजें अचीव की है. ऐसा नहीं है कि किसी ने 1 साल शुरू किया और 1 साल में वो प्रॉफिटेबल बन गया और वो रोल्स रॉयस में घूम रहा है या दुबई शिफ्ट हो गया, जो भी, राइट. It takes time for you to reach where those people are. I'm not saying that you will not reach with proper, management, proper ways, proper trading. You will reach there. Wealth and liquidity are not the same. Just because मेरे अकाउंट में पैसे है, मैं रिच हूँ. वेल्थ इज समथिंग दैट इज देयर एज एन एसेट, कि ये मेरा घर है, ये मेरा आईपैड है, जो भी है, ये एसेट्स में आता है, ये वेल्थ में काउंट होता है कि हाँ ये चीजें है जो बैक है मेरे पास. और लिक्विडिटी इज वेयर, कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है या फिर मैं कितना लिक्विड हूँ. दोनों भी चीजें अलग अलग है. डू नॉट कंफ्यूज कि मेरे अकाउंट में पैसा है इसलिए मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला हूँ, उसके अकाउंट में पैसा नहीं तो वो पैसा वाला नहीं है. सम देयर आर लॉट ऑफ पीपल, इफ यू गो आउट एंड रीड अबाउट हाउ रिच पीपल मैनेज देयर मनी, हाउ दे मैनेज देयर एसेट्स, and how they manage their money, and if you read about money management, you will see that wealth and liquidity are different topics, a different concept all in all together. Next point, measure your trading performance only in money. ये बहुत important point है. I recommend personally
कि आप आपके जो ट्रेडिंग के गेन्स है उन्हें परसेंटेजेस में देखिए। आई पर्सनली टारगेट कि मेरा अगर डिप्लॉयड कैपिटल लेट्स सपोज एक ट्रेड में 10,000 रुपए है, तो मैं उसमें 2,000 रुपए लेने के बाद उसमें से एग्जिट करने के लिए देखूं। हाँ, वो ऊपर जा रहा है तो आई विल लेट इट फ्लाई, नो प्रॉब्लम, बट माई टारगेट शुड बी 20% और 2,000 रुपीज इन अ ट्रेड। दैट इज वेयर आई स्टार्ट विद परसेंटेज प्रॉफिट्स। आपने बहुत इन्फ्लुएंसर से सुना होगा कि आपने 2 से 5% रिस्क करना है आपके अकाउंट का, और 10% का 1:3 1:5 जो भी आपको लेना है। अगर आप 2% रिस्क कर रहे हो तो आप 6% या 4% का एक गेन उसके अगेंस्ट लो, क्योंकि अगर इफ आई एम ओके विथ 500 rupees going out of the 10,000 in a particular trade, then I want at least 4 times of it, right? लेट्स सपोज अगर मैं 5% मेरे अकाउंट का रिस्क कर रहा हूँ या फिर इस ट्रेड में रिस्क कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें से 2,000 रुपए लेके एटलीस्ट निकलूं। दिस इज वेयर योर रिस्क मैनेजमेंट एंड योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस विल कम। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन 18 से 13% के बीच में ही रिटर्न देता है। वॉट एवर कैपिटल डिप्लॉय, आपको उसके ऊपर परसेंटेज प्रॉफिट्स में ही गेन दिखना है। ये नहीं कि मैंने लाख रुपए डिप्लॉय किए और मैंने अभी 2,000 रुपए बना लिए, सॉरी, लाख रुपए डिप्लॉय किया और मैंने उसके ऊपर 2 लाख रुपए बना लिए, अरे मैं वापस प्रॉफिटेबल हो गया। अगेन, जो चीजें मैंने पहले भी बोली है, आई वुड पर्सनली रेकमेंड, आई ऑल्सो डू इट, कि आप आपके गेन्स को परसेंटेज में देखिए, ना कि मनी मैटर्स में। बिकॉज इफ यू स्टार्ट लुकिंग इट इनटू मनी मैटर्स, यू विल स्टार्ट डूइंग रिवेंज ट्रेडिंग, यू विल स्टार्ट लुकिंग एट इट कि मेरा ग्रीड बढ़ गया या फिर मुझे इसमें से इतने ही पैसे लेके निकलना है। नहीं, इट विल नॉट वर्क। इफ आई डिसाइड कि मैं दिन के 10,000 बना के ही मार्केट से जाऊंगा, आई विल नॉट मेक मनी। बिकॉज इफ लेट्स सपोज 10,000 नहीं बने, मेरे 2-5 हजार लॉस हो गए, मैं वो 2-5 हजार कवर करने के चक्कर में चला जाऊँ। Set some rules, measure your trading performance in percentage and in different ways that also will come into in the upcoming episodes. But number one rule that you have to make is आप बहुत carefully आपके ट्रेड्स को मैनेज करें और आप परसेंटेज गेन्स में देखें, ना कि पैसों के इसमें। बिकॉज नॉट नेसेसरी कि आपने डिसाइड किया कि आज मैंने ऑप्शन खरीदा है और वो ऑप्शन 200 रुपए ही जाएगा, इट विल नॉट गो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। या फिर मैंने दिन के 10,000 रुपए बनाना है, यही मेरा गोल है, इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू डिसाइड कि मैंने आज 10,000 डिप्लॉय किया है, मेरे को उसका 20% की गेन पे मैं बाहर निकल जाऊंगा, 10% की गेन पे बाहर निकल जाऊंगा, अगेंस्ट वॉट यूर रिस्किंग और however you're trading or however your trading style is. So these are some myths and facts that I thought कि जो personally मुझे ऐसा लगता है कि डिस्कस करने चाहिए थे। That's it for the first episode. See you guys in the next one.